Hello everyone, my name is Gautam and today I have brought you 10 most important questions of chapter 6 lines and angle for the class ninth. And these are the 10 most important questions. And if you think you are somewhat prepared for this chapter before, so you should stop this video right here and try to solve these questions. Okay. So if you think you have solved, you can solve this question, you should stop the video right here and solve it by yourself because I think it is better for you to solve it by yourself. But if you feel like these questions are not very simple for you and you cannot solve them by your own, so I'm providing you a solution right here. Okay, let's start the video without any delay. And we have the first question given to be an exterior angle. An exterior angle of triangle is 105 and its two opposite interior angles are equal. So we need to find all the angles of the triangle. Okay, so what we have given is there is a triangle and it is given that its exterior angle. So exterior angle is outside the triangle. जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो उसके ट्रायंगल के बाहर होता है. तो लेट कर लेते हैं ये वो एक्सटीरियर एंगल है और गिवन है कि ये 105 डिग्री है. नाउ दिस एंगल इज 105 एंड लेट्स नेम दिस ए बी एंड सी. Okay, so we have this triangle and the outside exterior angle is 105 and other two opposite interior. So it said clearly that two opposite interior angles. So we need to find the two opposite interior angles. Two opposite interior angles are opposite to this. These are the two opposite and inside. So interior angles. तो ये होंगे वो दोनों अपोजिट और इंटीरियर एंगल ए एंड बी. तो बोला ये वाले दोनों एंगल्स क्या है, दोनों इक्वल है. सो इफ दे आर इक्वल लेट अस अज्यूम एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू समवट एक्स. किसी एक्स के इक्वल है, वी कैन जस्ट अज्यूम लाइक दिस एंड ये एक्स हो जाएंगे दोनों. अब यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ two interior angles is equal to opposite exterior angle. So this is the theorem that we are using right now. So this is, and in this triangle now we just light in triangle ABC. By using this theorem we are just using x plus x should be equal to 105 and we can find this 2x is equals to 105 and x is equals to 105 divided by 2. Okay, so that's how we have solved this. Now the value of x should be right here. The value of x is, by cancelling this out we can find this value. You can just solve in the mixed fraction or the decimal also, that does not matter. So the answer is 54.5. So this is what we 52.5. So this is what we have get from this. X values is 52.5. So this is how we solve this question. Now if we just need to find this angle also, we can simply use the linear pair and also the angle sum property. अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हम सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा. और सिंपली ये भी यूज़ कर सकते हैं कि एक लीनियर पेयर है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल भी 180 होता है. तो हम दोनों मेथड से ही निकाल सकते हैं. मान लो ये कोई y है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे y प्लस 105 शुड बी इक्वल्स टू 180 एंड इसकी रीज़न जो होगा, इसका रीज़न होगा लीनियर पेयर. सो इस रीजन से हम लोगों ने ये काम करा एंड y की जो वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 180 माइनस 105 एंड y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 डिग्री. सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन करना है. ओके, सो लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशो 5:3:7. तो हमारे पास तीन एंगल्स दे रखे हैं और उनकी रेशोज दे रखी है. सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर रेशोज दे रखी है ट्रायंगल्स के एंगल्स की. तो रेशोज है 5:3:7. एंड ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि वैसे दिखने में काफ़ी ईजी है लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब भी हमारे पास तीन एंगल्स की रेशो दे रखी हो और ट्रायंगल्स में हो तो डेफिनेट चीज़ है हम लोगों को एक एक्स लेट करना पड़ेगा. इस तरह से लेट एंगल्स आर 5x, 3x, 7x. जो रेशो दे रखी है उसी के साथ हम एक एक्स लगा के हम इस तरह से एक एंगल लेट कर लेंगे 5x, 3x और 7x. अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल सम होता है 180. तो सिंपली यूजिंग दिस रूल 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180
एंड इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 15x इक्वल्स टू 180 एंड x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिवाइडेड बाय 15। अब सिंपली जब इसको कट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 12 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब इस 12 की वैल्यूज को हम तीनों में पुट करके आंसर्स निकाल लेंगे। सो एंगल्स आर 5x, 3x and 7x, and the values would be 5 multiplied 12 that is 60, 3 multiplied 12 that is 36, and 7 multiplied 12 that is 84. So that is how we prepare the questions right here. Okay, now let's look at the third question. Okay, now the third question is, we have this figure right here, and PQ is a straight line, and we have the angles 40, 3x and 4x, and we need to find the value of x. So I don't think it's that difficult question that we need to complete this. So I'm just leaving this question for you and telling you the main point, that PQ is a straight line, O is the point, and so this is 40 and this is 3x and that is 4x. Now एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल जो कंप्लीट इज डी की फॉर्म में बन रहा है, ये हमेशा 180 होता है, तो इन तीनों का सम जो आना चाहिए वो 180 आना चाहिए. सो 40 प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 and you can just find the value of x from this equation. So I'm not completing the question from you and this is a homework for you. आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे आगे. ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. नाउ फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू understand it properly. It is an NCERT question. That's an NCERT question, and given this is a figure and we have angle P 1110 and 110, then we have this R 130 and we need to find PQR actually, PQR. So we need to find this angle PQR. So if you know this question, you can pause this video right here and solve it by your hand. That is an important question, or otherwise I'm helping you here right here. So we have this figure. पहले एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारे पास ये फिगर हमारे पास आई कुछ इस तरह से, क्यू पी and that is that should be the O point again. No, that is the O point, and that here is R and that's S. So this is the figure. I know this angle 110 and I also know this angle 130 and I need to find angle POR. So we need to find this angle in the middle one. So what we are going to do, we are going to use the construction here. By construction, we are constructing a line. Constructing a straight line. Let draw XY, a straight line through O and parallel to PQ and RS, and it is given in the question that PQ and RS are parallel. It is given in the question. So we are constructing a line XY which is parallel to PQ and RX. So let us draw this line right here. So this is a straight line that we are using, that is X point and that's an Y point. So this line XY is parallel to OP and RS both. So this is the construction we are using. Now let us name these angles also. Let us say this is angle 1 and this is angle 2. So this is what we are doing. Now simply what we are going to do, we have that XY is parallel to QP. So we know that XY line is parallel to QP. By construction, we have constructed the line in such a way that they are parallel. So by construction they are parallel, and if these two lines are parallel, so I can just assume that these two lines are parallel and this is a transversal. And if I have two parallel lines and a transversal, then the inside angles are called to be co-interior angles, and some of the co-interior angles are also always 180. इनका सम हमेशा 180 होगा. तो इस लॉजिक से हम लोगों ने ये वाला एंगल 1 और ये, तो हमने बोला 1110 प्लस एंगल 1, ये दोनों का सम होना चाहिए हमारे पास 180. तो यहाँ से एंगल 1 निकाल लेंगे हम लोग, 180 माइनस 1110, और एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास इधर से 70 डिग्री. ओके,
सो ये हमने करा यहाँ से। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे यहाँ से कि आर एस पैरेलल है एक्स वाई के। अब आर एस भी पैरेलल है एक्स वाई के, वाई बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी थी कि ये चीज़ पैरेलल हो गई। अब आर एस और एक्स वाई अगर पैरेलल है तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना, एंड दिस इज एंगल 130 एंड दिस इज एंगल 2। अब यहाँ से ऐसे ही हम लोग एंगल 2 + 130 को भी बोलेंगे 180, और इसकी वजह भी क्या होगी, को इंटीरियर एंगल। आई एम नॉट राइटिंग द फुल नेम्स बट यू नीड टू राइट द फुल नेम्स। एंड एंगल 2 इज 180 - 130 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू 50, सो दैट इज एंगल 2। अब एंगल 2 भी आ चुका है और एंगल 1 भी आ चुका है, तो ये भी एंगल मेरे पास है, ये भी एंगल मेरे पास है और ये मेरे पास है, तो मिडिल का एंगल निकालना है। हम कहेंगे एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन बाय कंस्ट्रक्शन, वी हैव ड्रॉन द एक्स वाई एज अ स्ट्रेट लाइन, सो एक्स वाई इज अ straight line and angles on a straight line on a single point is always sums to be 180, so that reason angle 1 plus angle POR plus angle 2 equals to 180, so 70 plus angle POR plus 50 equals to 180। I find the angle 1 and 2, so इधर से हम लोग कहेंगे POR की वैल्यू क्या आएगी 180 एंड 70 + 50 होगा 120, माइनस करूंगा तो जब यहाँ से तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन अगेन। Okay, so fifth question is actually a one word question, yes or no, true false type question. So we have, can all the angles of triangle less than 60? क्या एक ट्रायंगल के सारे एंगल, तीनों एंगल 60 से कम हो सकते हैं? सो द आंसर इज नो, नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो अगर ये 60 से तीनों कम हो गए, फिफ्थ क्वेश्चन लेट कर लेते हैं जो तीनों एंगल्स है वो 60 से एक कम ले लेते हैं, 59, 59 एंड 59, लेट अस से कि ये तीनों एंगल्स हैं। अब क्योंकि मुझे पता है तीनों का सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 180, लेकिन जब इनको प्लस करोगे तो आंसर आ रहा है 177, तो 180 आया नहीं। अब तो यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी गलत हो रही है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी तो गलत हो नहीं सकती, इसलिए हमने बोला ऑल थ्री एंगल्स कैन नेवर बी लेस देन 60, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स, कि नहीं हो सकती। ओके, ऐसे ही हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, ये वाला दे रखा है, कैन टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल? ना, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90, जो 90 से बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूज होते हैं। अब इसके अंदर बोला सिक्स क्वेश्चन के अंदर, क्या दो एंगल 90 से बड़े हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? तो हम अगेन यहाँ पे क्या कहेंगे, नो, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर दो 90 से बड़े हो गए, मान लो 90 हो गए, 90 से बड़े भी छोड़ो, दो 90 भी हो गए तो सम आ गया 180, तीसरे की तो जगह ही नहीं बची। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ट्रायंगल के अंदर दो ही एंगल है, तीसरा एंगल ही नहीं है, ट्रायंगल की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। इसलिए हमने बोला कि नहीं, 90 से बड़े भी नहीं हो सकते, 90 भी नहीं हो सकते एक्चुअली। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, कैन ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल एंगल्स, तो आप कहोगे तब भी नहीं, दो नहीं हो सकते, एक ही होगा अगर होगा तो। अब सिंपली हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा दो लाइन्स जो है इसके अंदर वो पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। तो वो जस्ट लोग फिगर पे देखेंगे और इसी के सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमें पता है अगर दो लाइन्स पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो जो अंदर अंदर के एंगल बनते हैं तो उनको बोलते हैं को इंटीरियर, और उनका सम आना चाहिए 180। तो दोनों में चेक करूंगा, इसमें भी और इसमें भी, अगर दोनों का सम 180 बना तो लाइन्स पैरेलल है, और नहीं बना तो लाइन्स पैरेलल नहीं है। अब जब इसको चेक करते हैं तो यहाँ तो हमारे पास 180 नहीं बन रहा, यहाँ पे जब प्लस करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 179, एंड 179 इज नॉट इक्वल टू 180, इसलिए पी एंड क्या हुआ, नॉट पैरेलल। जब इस वाले के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास 180 बन रहा होगा। अब अगर ये 180 बन रहा है तो हम बोलेंगे एल एम एंड लाइन्स आर पैरेलल, सो द फर्स्ट लाइन्स आर पैरेलल एंड सेकंड आर नॉट पैरेलल। नाउ eighth question is, we need to prove vertical opposite angles are equal. So that is actually a NCERT theorem, and that is an important theorem also. That's a very simple theorem actually. Vertical opposite angles को equal prove करना काफ़ी simple काम है, और फिर भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर prove करना है vertical opposite angles are equal। तो देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल तब बनते हैं हमारे पास जब दो स्ट्रेट लाइंस कट करती है, तो लेट कर लेते हैं, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी। तो हमने बोला ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड सी डी इज ऑल्सो अ
स्ट्रेट लाइन, और दो लाइंस क्रॉस कर रही है, तो हमें अब ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो ये वाले होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, एंड ये वाला एंगल और, so these are the vertical opposite angle. Let's name them angle 1 and that's angle 2. This is angle 3 and this is angle 4. So let's name them. Now हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग बोलेंगे कि AB is a straight line by construction, AB is a straight line, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने कोई भी काम बिना रीजन के नहीं करना है, इसकी हर एक चीज़ की वजह होनी चाहिए। तो हमने बोला बाय कंस्ट्रक्शन ए बी जो है स्ट्रेट लाइन थी, अब स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम हमेशा होता है 180, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होना चाहिए 180। इसको नाम देंगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन दैट वी नीड। अब नेक्स्ट टाइम बोलूंगा कि सी डी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, सी डी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन एंड रीजन फॉर दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन सी डी भी स्ट्रेट लाइन है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 होना चाहिए। इसको नाम दूंगा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 180 की इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे की भी इक्वल होने चाहिए, मतलब 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होना चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि दोनों ही इक्वल है 180 के। हमारा काम सिर्फ इतने से हो जाएगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एंगल 2 और एंगल 2 से 2 कट हो सकता है, सिंपली प्रूव हो गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3। और ऐसे ही आप लोग, अब मैं यहाँ सिमिलरली लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोग दोबारा से लिख के दिखाओगे, आप लोग लिख के दिखाना। सिमिलरली हम लोग कह देंगे एंगल 2 वाला इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। सो 1 इक्वल है 3 के, 2 इक्वल है 4 के। तो ये इतना छोटा सा प्रूफ था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का। ओके, सो नाउ वी हैव लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस। अब वो लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को जल्द से